بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں ماؤں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اے ایمان والوں تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم جما دوں گا. سورہ محمد آیت نمبر 7. اے ایمان والوں تم اللہ کی مدد کرو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے. یہ اس دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا قرآن میں. یہ شروع سے جب سے اسلام دنیا میں لوگوں نے جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگوں نے اسلام کی دعوت دی وہاں سے لے کے آخر تک کے لوگوں کو اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے ایمان والوں. یعنی کہ جو بھی ایمان والے ہیں مسلمان ایمان والے جو بھی ہے ان لوگوں کے لیے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا. اب دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم جما دوں گا. تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا فرض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احکام کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانا لوگوں تک پہنچانا. تو آج ہم اور آپ سوچیں گے کہ ہم نے کتنا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچایا. کیا ہم نے ہمارے دوست ہمارے احباب ہمارے رشتہ دار جتنے بھی ہیں محلے میں آجو باجو پڑوس میں کیا ہم نے اس کی دعوت دی؟ کیا ہم نے اس کو عام کیا پہنچایا اسلام کے بارے میں بتایا کہ ہمارے گھر کے پڑوس میں باجو میں جو لوگ جو بھی ایمان والے ہیں کیا ہم نے اسلام کی دعوت دی؟ کیا ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا؟ یہ کام صرف جو ہے مومن کے لیے بھی ہے اور جو مومن نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے. جو غیر مسلم ہے ان کے لیے بھی یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے لازم ہے. آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھیں گے انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں کہ ہمارے مومن بھائی ایمان والے کہتے ہیں پھر کام کیا کر رہے ہیں؟ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس کی پوجا کرتے ہیں ایمان والے ہو کر کے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے اور ان لوگوں کو جو ہے صحیح دعوت صحیح راستے کی دعوت دینا ہے. یہ ہم اور آپ کا کام ہے سوچنا کہ ہم نے آج دن بھر میں ہم نے کیا لوگوں کو پیغام پہنچائے. کیا ہم نے لوگوں کو پیغام پہنچایا اور کیا ہم نے جو ہے آج کے دور میں آج کے حساب سے جیسے آج میرا دوست ہے میرے دوست کو میں نے ایک آیت بتائی ہے. کیا میں نے اس کو قرآن کی ایک آیت بتائی ہے؟ کیا میں نے اس کے ساتھ میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں کام کر رہا ہوں ہر چیز جسن جو ہے جو بھی کام کے بارے میں بولنا کرنا سب کر رہا ہوں لیکن کیا میں نے اسلام کی ایک بات اسے پہنچائی؟ کیا میں نے اس کو ایک آیت قل اللہ کا سورہ کی آیت بتایا؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے. اور ہمارے پڑوس میں جو پڑوس میں ہے جو غیر مسلم ہے یا کوئی بھی یا مومن ہے وہ بھی اگر صحیح ایمان والے ہیں
तो मैंने इस्लाम का पैगाम पहुंचाया है कि नहीं। ये हमें और आपको सोचना है। आज मैं क्या करता हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सब करता हूं। मेरा दोस्त है, पड़ोसी है, मुझे शादी के लिए बुलाते हैं। मैं नहीं सोचता कि शादी के अंदर जाने से मेरा जो है कि अल्लाह ताला नाराज होगा या नहीं। क्या मैं लोगों को खुशी करने के लिए उनकी शादी में हाजिर हो रहा हूं। सबसे पहली दावत ये आज के दौर में शादी के लिए बुलाते हैं तो शादी में बिदअत काम हो रहे हैं, बिदअत कर रहे। क्या अल्लाह के हिसाब में कर रहे वो लोग, अल्लाह के कहने पे कर रहे। जैसे अल्लाह ने कहा सही रास्ता पकड़ो, बिदअत छोड़ दो, इस्लाम के अंदर नई बातें मिलाना छोड़ दो। शादी की दावत देते हैं, फिर बर्थडे की दावत देते हैं। अरे मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, आज उसका बर्थडे है, आज उसका हैप्पी बर्थडे। अरे आज वो मेरा क्रिश्चियन दोस्त है, आज उसका जो है मेरी क्रिसमस है, मैं उसको जाना पड़ेगा, मैं उसके पास जाना पड़ेगा। नहीं गया तो वो नाराज हो जाएगा, कल के दिन मेरा उससे काम नहीं होगा। मैं उसके बारे में सोचता हूँ, अल्लाह के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अल्लाह क्या कहते हैं अल्लाह के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो अपने काम से काम रखता हूँ। तो क्या इसमें अल्लाह खुश होंगे, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे, ये हमें और आपको सोचना है। मैं अपने काम से काम रखूंगा तो क्या इसमें जो है अल्लाह और रसूल खुश होंगे, ये हमें और आपको सोचना है। कि आज मैं एक मेरा दोस्त है, मेरे काम जिधर मैं करता हूँ, जिधर मैं उसके साथ में काम करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और चाय पीता हूँ, एक एक घंटे जो है इधर उधर की बातें करता हूँ, दोस्त हूँ और अपने रिश्तेदार हूँ, दुनिया की बातें करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी हम और आपने सोचा है कि मैंने एक बार भी उसे कहा कि भाई देख इस्लाम कबूल कर ले। हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी आयत सिर्फ 4 लाइन की सिर्फ एक आयत है, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, उसका कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है और ना किसी से जना गया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं सारी दुनिया में। क्या हमने कहा है ऐसा? अगर कल कयामत के रोज अल्लाह हमें खड़ा करेगा, हमारे रिश्तेदारों को खड़ा करेगा, हमारे दोस्तों को खड़ा करेगा, कल कयामत के रोज सवाल जवाब होगा कि दुनिया के अंदर क्या तूने इस्लाम की दावत दी। वो दोस्त कहेगा या अल्लाह ताला, मैं तो इसके साथ कम से कम 20-25 साल से इसके साथ बिजनेस किया, दोस्ती रखा, बचपने से मेरी इसकी दोस्ती थी, लेकिन इस्लाम के बारे में इसने ये एक आयत जो है मुझे नहीं बताया। हम और आपको सोचना है, क्या मैं अपने दोस्त को जो है अगर एक आयत भी अगर नहीं बताया तो कल कयामत के दिन जब मेरा दोस्त सवाल करेगा अल्लाह से और अल्लाह मुझे पूछेंगे तो क्या मैं इसका जवाब दे सकूंगा? मेरे मतलब से मैंने उसके साथ रहा, मैं अपना मतलब से रहा, मेरे काम बिजनेस से रहा, मगर मैंने उसको एक इस्लाम की दावत नहीं दी। क्या इसमें अल्लाह खुश है? क्या इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश है? मैं उसके बर्थडे में जाता हूँ, अरे वो नाराज हो जाएगा। अरे मैं उसके जो है शादी में जाता हूँ, अरे वो नाराज हो जाएगा। दावत अगर आ रही है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कबूल करो, लेकिन ये नहीं कहा कि दावत जो है किसकी है, कैसी है, क्या है वो देखना। कई लोग कहते हैं कि दावत कबूल करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, लेकिन दावत कबूल करना जरूरी है, लाजिम है, लेकिन देखो कि उस दावत में शिर्क काम हो रहा है क्या, बिदअत काम हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो रुक जाओ। अगर तुम जाते हैं तो घर से तुम निकलेंगे तो तुम्हारे कदम कदम पर फरिश्ते लानत करते हैं कि ऐसी जगह पे जा रहा है जिधर बिदअत हो रही है, जिधर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे अल्लाह का नाम जो है खराब हो रहा है, मेरे अल्लाह ताला का जो है नाम को जो है लोग खराब कर रहे हैं। तो ये हमें सोचना है। अगर मैं एक शादी में जा रहा हूं तो शादी में क्या सही तौहीद के ऊपर शादी हो रही है, अल्लाह के कहने पे हो रही है, अल्लाह के रास्ते पे हो रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे हो रही है, ये मुझे पहले देखना है। शादी में हाँ मेरे रिश्तेदार है, हाँ शादी हो रही है, काम क्या हो रहा है, बिदअत हो रहा है,
पहले कुरान खानी करो, हल्दी मेहंदी लगाओ, हाँ काम बिदत हो रहा है, और फिर मैं जा रहा हूँ। इसमें क्या मेरा जाना ये अल्लाह को पसंद है? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मैं दावत कबूल करूं, ऐसी दावत? ये हमें और आपको सोचना है। आज हम जाते हैं, उसके बर्थडे हो रहा है, उसकी जो है हैप्पी बर्थडे कर रहा है, हाँ उसका जो है जन्मदिन मना रहा है, तो क्या ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है? क्या मेरे अल्लाह का कहना है? मेरे क्रिसमस में जा रहा हूं, अरे मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, अरे मेरा दोस्त ये हो जाएगा, अरे रिश्तेदार जो है मेरे अलग हो जाएंगे, रिश्तेदारों से मैं बुरा हो जाऊंगा। सारी दुनिया से बुराई पसंद है मेरे अल्लाह को, जो है अल्लाह को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन बिदत, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इसके लिए अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माफ नहीं करेंगे। कल कयामत के रोज हम और आप क्या अल्लाह के सामने जवाब देंगे? हमें और आपको ये बातों को सोचना है और लाजिम सोचना है। अल्लाह ने क्या कहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे कदम जमा दूंगा। तो मदद हमें करना है अल्लाह ताला की, तब हमारी मदद अल्लाह ताला करेंगे। ये हमें और आपको सोचना है। हम ईमान वाले हैं तो हमें सोचना लाजिम है, जरूरी है। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ये हमें और आपको सोचना है, लाजिम सोचना है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 7 याद कर लो और सही रास्ता पकड़ो, सिर्फ तौहीद का रास्ता पकड़ो। इसी में हम और आपकी भलाई है और सही रास्ता जो है हमें और आपको जन्नत में लेके जाएगा। वरना जो है हम कहाँ होंगे आखिरत में, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अंता अस्तगफिरुका व तूबु इलैक। ऐ अल्लाह तेरी जात पाक है और तू जो है जितने भी हमने गुनाह किए माफ करने वाला है, और इस बयान के अंदर जो भी गलतियां हुई है उसे तू माफ और दरगुजर करने वाला है। तेरी तारीफें जो है सदा बहार है, तू तारीफ के काबिल है, तू तारीफ के लायक है, तू बड़ी बुजुर्गी वाला है, तू हर गलती को माफ करने वाला है। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।